السلام علیکم ناظرین، دوسری دنیا میں خوش آمدید۔ وفاداری اور غداری دو مختلف الفاظ ہیں، مگر یہ دونوں کسی بھی شخص کی زندگی یا پھر کسی بھی ملک کی تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ دنیا میں موجود زیادہ تر لوگ صرف اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کس کا نقصان ہوگا۔ ناظرین، جو لوگ اپنے ملک، ریاست یا سرکاری اداروں کو بیچ دیتے ہیں انہیں عام طور پر غدار کہا جاتا ہے۔ وہ مختلف وجوہات کی بنا پر ایسا کر سکتے ہیں، جس میں مالی فائدہ، سیاسی طاقت یا نظریاتی اختلافات شامل ہیں۔ ان افراد کی مثالیں جنہوں نے اپنا ملک یا سرکاری اداروں کو بیچ دیا، ان میں جاسوس جو غیر ملکی حکومتوں کو خفیہ معلومات فراہم کرتے ہیں، وہ سرکاری اہلکار جو رشوت لیتے ہیں یا کرپشن جیسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور فوجی اہلکار جو اپنے ملک کو دشمن ریاست سے دھوکہ دیتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 10 لوگوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو یا پھر اپنے سرکاری اداروں کو صرف اور صرف اپنے مفاد کی خاطر بیچا اور اپنے وطن سے غداری کی۔ نمبر 1، ایلڈرچ ایمز۔ ایلڈرچ ایمز CIA کا ایک افسر تھا جس نے 1980 کی دہائی میں سوویت یونین کو راز فروخت کیے تھے۔ وہ 1941 میں نیو کو راز دینا شروع کیا جو KGB یارک کے ریول ڈیل میں پیدا ہوا اور 1962 میں CIA میں شامل ہوا۔ 1985 میں ایمز امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ نقصان دہ جاسوسوں میں سے ایک بن گیا۔ اس نے سوویت یونین میں کام کرنے والے 100 سے زائد امریکی جاسوسوں کی شناخت ظاہر کی، جن میں سے کئی کو پھانسی دے دی گئی۔ اس نے ایسی معلومات بھی فراہم کی جن سے سوویت یونین کو امریکی انٹیلیجنس آپریشنز کو ناکام بنانے کا موقع ملا۔ ایمز کو 1994 میں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے جاسوسی کے الزامات کا اعتراف کیا تھا۔ اسے پیرول کے امکان کے بغیر عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ نمبر 2، جان اے واکر۔ جان اے واکر امریکی بحریہ کے سابق افسر تھے جنہیں سوویت یونین کے لیے جاسوسی کرنے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔ اس نے 1967 میں سوویت یونین کے لیے جاسوسی شروع کی اور 1985 تک اس کی سرگرمیوں کا پردہ فاش نہیں ہوا۔ ایک جاسوس کے طور پر اپنے 18 سال کے دوران واکر کو اپنی معلومات فراہم کی گئی جو امریکی جاسوسوں کا سراغ لگانے اور انہیں مارنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، اور اس نے سوویت کو ایسے راز بھی فروخت کیے جو اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعمیر کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسے 1985 میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس نے جاسوسی کے متعدد الزامات کا اعتراف کیا تھا۔ اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن 19 سال کی سزا بھگتنے کے بعد 2004 میں رہا کر دیا گیا۔ نمبر 3، جوناتھن جے پولارڈ۔ جوناتھن جے پولارڈ ایک امریکی ہے جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں سزا یافتہ ہے۔ وہ اس وقت اپنے جرائم کی پاداش میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ جوناتھن جے پولارڈ 1954 میں گلسٹن ٹیکساس میں پیدا ہوا۔ ان کے والد ایک کامیاب معالج تھے اور ان کی والدہ گھریلو خاتون تھی۔ پولارڈ کی پرورش ایک متوسط طبقے کی یہودی گھر میں ہوئی اور وہ بوائے اسکاؤٹس آف امریکہ میں سرگرم رہا۔ انہوں نے 1976 میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں ڈگری حاصل کی۔ 1979 میں پولارڈ نے امریکی بحریہ کے لیے بطور انٹیلیجنس تجزیہ کار کام کرنا شروع کیا۔ اس کے پاس خفیہ کلیئرنس تھی اور اس کا کام بحریہ کے افسران کو امریکہ کے لیے ممکنہ خطرات سے آگاہ کرنا تھا۔ 1984 میں پولارڈ نے اسرائیل کے لیے جاسوسی شروع کی۔ اس نے رقم کے عوض اپنے اسرائیلی ہینڈلرز کو خفیہ معلومات فراہم کی۔ پولارڈ کو 1985 میں گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا تھا۔ اس نے اعتراف جرم کیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ پولارڈ اس وقت شمالی کیرولائنا کے بٹنر میں واقع فیڈرل کرشنل انسٹیٹیوشن میں قید ہے۔ نمبر 4، رابرٹ فلپ ہینسن۔ رابرٹ فلپ ہینسن فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کا سابق ایجنٹ ہے جس نے 15 سال سے زائد عرصے تک سوویت یونین اور روس کے لیے جاسوسی کی۔ وہ فی الحال فلورس کلواڈو میں ریاست متحدہ امریکہ میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ ہینسن 18 اپریل 1944 کو شکاگو النوائے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی سے 1966 میں کیمسٹری میں ڈگری حاصل کی اور پھر FBI میں شمولیت اختیار کی۔ ہینسن سوویت کاؤنٹر انٹیلیجنس کے ماہر بن گئے اور FBI کے اندر مختلف قسم کے حساس عہدوں پر فائز ہوئے۔ 1985 میں اسے FBI کے نیو یارک سٹی آفس میں تفویض کیا گیا جہاں اس نے سوویت کے لیے جاسوسی شروع کی۔ اس نے سوویت یونین کو KGB سرگرمیوں کی تحقیقات پر کام کیا۔ اکتوبر 1985 میں ہینسن نے FBI کی نگرانی کی تکنیکوں، تحقیقات اور ایجنٹوں کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ اس نے کئی سوویت ایجنٹوں کی شناخت بھی ظاہر کی جو امریکہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ بدلے میں ہینسن کو $1.4 ملین سے زیادہ نقد اور ہیرے ملے۔ ہینسن کی سرگرمیوں کو بالآخر FBI نے دریافت کیا اور اسے 2001 میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے جاسوسی کے 13 الزامات کا اعتراف کیا اور پیرول کے امکان کے بغیر اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ نمبر 5، ہیرالڈ جیمز نکلسن۔
हेराल्ड जेम निकलसन रियासत मुत्तहिदा की मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी के एक साबिक आला ओहदेदार हैं, जिन्हें रूसी फेडरेशन के लिए जासूसी के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। वो इस वक्त 23 साल कैद की सजा काट रहा है। निकलसन ने अपने कैरियर का आगाज 1980 में CIA के साथ किया और वो तेजी से सफों में शामिल हो गए। उन्होंने मुतअद्दिद आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दी, बशमूल दुनिया भर में कई मुकामात पर चीफ ऑफ स्टेशन के तौर पर। वो CIA के काउंटर टेररिज्म सेंटर और काउंटर इंटेलिजेंस सेंटर में भी अहम किरदार अदा करते थे। 1994 में निकलसन को गिरफ्तार किया गया और इन पर रूसी फेडरेशन के लिए जासूसी का इल्जाम आयद किया गया। इसे 1997 में मुजरिम करार दिया गया था और इसे 23 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। निकलसन को अमेरिकी तारीख में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले जासूसों में से एक समझा जाता है। ख्याल किया जाता है कि इसने CIA के 150 से ज्यादा एजेंटों और एहसासों की शनाख्त से समझौता किया है और यह भी ख्याल किया जाता है कि इसने रूसियों को CIA की कार्रवाइयों और तरीकों के बारे में खुफिया मालूमात फराहम की थी। नंबर 6, एनाबेला मॉन्टेस। एनाबेला मॉन्टेस क्यूबा की एक आला जासूस जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि उन्होंने अकेले ही क्यूबा के इनकलाब का रुख बदल दिया। अपने मुल्क, रियासत या सरकारी इदारों को धोखा देकर अमेरिका को बेच दिया। 1990 की दहाई के अवाइल तक क्यूबा और सोवियत यूनियन टूट चुके थे और क्यूबा मुआशी तौर पर जद्दोजहद कर रहा था। सोवियत फौजी हमायत अचानक खत्म हो गई, जिससे क्यूबा अमेरिकी हमले का शिकार हो गया। क्यूबा की हुकूमत ने मुआशी इमदाद के लिए सोवियत यूनियन का रुख किया, लेकिन सोवियत यूनियन अपने ही मुआशी बहरान का शिकार था और वादा करदा इमदाद फराहम नहीं कर सका। जवाब में क्यूबा ने सोवियत और मशरकी बलाग के इंटेलिजेंस अफसरान को क्यूबा की सरजमीन से काम करने की इजाज़त देना शुरू कर दी। इन अफसरान में से एक क्यूबा की इंटेलिजेंस की आला ओहदेदार एनाबेला मॉन्टेस थी। मॉन्टेस को वस्ती अमेरिका, खास तौर पर निकारागुआ, होंडुरास में अमेरिका फौजी सरगर्मियों की निगरानी का काम सौंपा गया था। वो फेडरल कास्ट्रो और क्यूबा के दीगर आला हुकाम से भी बाकायदा राब्ता रखती थी। 1995 में क्यूबा की हुकूमत ने हैटी पर हमला करने और जैन बर्ट्रैंड स्टैंड की हुकूमत का तख्ता उल्टने के अमेरिकी मंसूबे की हवा पकड़ ली। मॉन्टेस ने अपने आला अफसरान को आने वाले हमले से खबरदार किया, लेकिन उन्होंने इस पर यकीन नहीं किया। नतीजे के तौर पर क्यूबा की फौज हमले के लिए तैयार नहीं थी और अमेरिकी अफवाज कामयाबी के साथ अरस्टाइड हुकूमत का तख्ता उल्टने में कामयाब हो गई। मॉन्टेस की वार्निंग पर अमेरिका का ध्यान नहीं गया और वो जल्दी CIA के शक की जद में आ गई। ख्याल किया जाता है कि उसने क्यूबा के इनकलाब को नुमाया तौर पर सुस्त कर दिया। वो इस वक्त अमेरिका में 25 साल कैद की सजा काट रही है। नंबर 7, एडवर्ड ली हॉवर्ड। नाजरीन, अक्सर लोग ऐसे हैं जो अपने मुफाद की खातिर जासूसी करते हैं और अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे ही एडवर्ड ली हॉवर्ड CIA का एजेंट था जो 1985 में सोवियत यूनियन के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। इसके बाद इसे CIA से निकाल दिया गया और सोवियत यूनियन फरार हो गया। वो अपनी सारी जिंदगी वहां रहे, पहले एक मुतरजम के तौर पर और फिर एक रूसी तेल कंपनी के मशीर के तौर पर काम किया। हार्वर्ड का इंतकाल 2002 में 50 साल की उम्र में हुआ। नंबर 8, एंटा मॉन्टेस की साबिक सीनियर तजियाकार हैं, जिन्हें क्यूबा की हुकूमत के लिए एना पेलेक्स मॉन्टेस अमेरिका में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी जासूसी के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। इसे 21 सितंबर 2001 में गिरफ्तार किया गया था और इसने 9 अप्रैल 2002 को जासूसी के इर्तिकाब की साजिश के एक जुर्म का एतराफ़ किया था। मॉन्टेस को 14 अक्टूबर 2002 को 25 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। मॉन्टेस ने 1985 में DIA में काम करना शुरू किया और इसे अमेरिकी फौजी मंसूबों और सलाहियतों के बारे में खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल थी। मुबैना तौर पर इसने 1980 की दहाई के आखिर में क्यूबा की हुकूमत को मालूमात देना शुरू की और 2001 में अपनी गिरफ्तारी तक यह काम जारी रखा। यह ख्याल किया जाता है कि इसने अमेरिकी फौजी मशकों, इंटेलिजेंस जमा करने की सलाहियतों और कास्ट्रो मुखालिफ ग्रुपों की सरगर्मियों के बारे में मालूमात फराहम की। क्यूबा की हुकूमत को वाशिंगटन DC में क्यूबा की मफादात की सेक्शन में एक एजेंट के मनहरफ होने के बाद 2000 में FBI की तरफ से खुली गई तहकीकात की वजह से इसे दरियाफ्त किया गया था। तहकीकात से मालूम हुआ कि मॉन्टेस एक दहाई से क्यूबा की हुकूमत को खुफिया मालूमात फराहम कर रही थी। यह केस इस वक्त तक काबिल जिक्र था जब मॉन्टेस एक जासूस के तौर पर काम करने में कामयाब रही थी और आला सतह तक रसाई के लिए इसे मालूमात की दर्जा बंदी करनी पड़ी थी। नंबर 9, किम फिल्बी। किम फिल्बी एक बरतानवी इंटेलिजेंस अफसर और सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन का डबल एजेंट था। वो 1912 में पैदा हुआ और 1988 में इंतकाल कर गया। वो कैम्ब्रिज 5 का रुकन था, सोवियत जासूसों का एक ग्रुप जो 1930 और 1940 की दहाइयों में काम करता था, लेकिन खुफिया तौर पर सोवियत यूनियन को मालूमात MI6 बरतानिया में काम करता था। फिल्बी बरतानवी खुफिया एजेंसी में आला ओहदे तक पहुंचने के काबिल था
और उस एजेंसी के एंटी सोवियत सेक्शन का सरबराह भी MI6 फराहम करता था। वो मुकर्रर किया गया था। 1963 में फिर भी सोवियत यूनियन चले गए, जहां इन्हें सियासी पनाह दी गई। वो 1988 में अपनी मौत तक वहां मुकीम रहे। वो तारीख के सबसे कामयाब और नुकसानदेह जासूसों में से एक थे और बरतानवी इंटेलिजेंस के साथ इसकी धोखाधड़ी का सर्द जंग के दौरान गहरा असर हुआ। नंबर 10, एडवर्ड स्नोडेन। से खुफिया मालूमात प्रेस को लीक कर एडवर्ड स्नोडेन एक अमेरिकी सीटी बजाने वाला है, जो 2013 में नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी करने के बाद बैन अल-अक़वामी तवज्जो का मरकज बना। इसने मालूमात लीक करने से पहले एक ठेकेदार के तौर पर काम किया। स्नोडेन ने जो मालूमात बताई, इसने खुफिया सरकारी निगरानी के प्रोग्रामों के वजूद का इंकशाफ किया, जिसमें लाखों अमरीकियों और गैर मुल्की शहरियों के फ़ोन और इंटरनेट डाटा इकट्ठा करना भी शामिल है। स्नोडेन ने यह भी गैर मुल्की रहनुमाओं और हुकूमतों की जासूसी कर रही थी और इसे बड़ी इंटरनेट कंपनियों के सर्वर्स तक रसाई दी गई थी। अमेरिकी हुकूमत ने स्नोडेन पर जासूसी और सरकारी अमलाक की चोरी का इल्ज़ाम लगाया और वो मुल्क से फरार हो गया। आखिरकार रूस में पनाह की तलाश में स्नोडेन ने कहा कि मालूमात को लीक करने का इनका मुहर्रिक हुकूमती हद से तजावुज़ को बेनकाब करना और शहरी आज़ादियों को तहफ़्फ़ुज़ करना था। स्नोडेन ने इक़दामात पर बड़े पैमाने पर बहस हुई है। कुछ ने इसे एक बहादुर सिटी बजाने वाला और दूसरों ने इसे गद्दार करार दिया। इसने अपने अमाल के लिए मुतअद्दिद अवार्ड हासिल किए, जिनमें रैंडन हॉल प्राइज़ फॉर ट्रुथ टेलिंग और सीम एडम्स एसोसिएट्स फॉर इंटीग्रिटी इन इंटेलिजेंस शामिल हैं। नाजरीन, ये वो लोग होते हैं जो अपने मुल्क की भी बदनामी का सबब बनते हैं, और जब ये लोग अपने जुर्म की सज़ा में पकड़े जाते हैं तो मुख्तलिफ ममालिक अपने कवानीन के मुताबिक इन्हें सज़ा देते हैं और ज़्यादातर को फांसी